गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट टर्म में। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स को हम लोग कैसे सीक्वेंस कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इस चीज को हम लोगों ने देखा। अब इस लेक्चर में हम लोग लैचेस को देखेंगे कि लैचेस आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और फ्लिप फ्लॉप्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग CMOS। तो सबसे पहले कि लैचेस जो हैं, लैचेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। तो लैचेस आपको पता है कि व्हाट आर लैचेस। लैचेस इज एक्चुअली, अब आपको अगर मैं मल्टी वाइब्रेटर के टर्म्स में बात करूं, तो मल्टी वाइब्रेटर के टर्म्स में बात करूं तो विच काइंड ऑफ द मल्टी वाइब्रेटर्स आर लैचेस। तो लैचेस आर एक्चुअली बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, लैचेस आर एक्चुअली अ बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. These are bistable multivibrators. So what do you mean by bistable multivibrator? Bistable means there are two states, means one is high state and another one is low state. There are two states and one is high state and another one is a low state. So high state hui या low state hui, the output will remain in that state until and unless इंटरप्शन इज नॉट प्रोवाइडेड। मतलब जब तक कोई इंटरप्शन नहीं आएगा तब तक वो पर्टिकुलरली हाई स्टेट में बना रहेगा या तो फिर लो स्टेट में बना रहेगा। मतलब जब तक हम इनपुट नहीं चेंज करते हैं तब तक वो इस तरीके से रहेगा। तो इसी तरीके की जो क्वालिटी होती है एक सर्किट जो कि इस तरीके की क्वालिटी को होल्ड कर रहा है, मतलब अगर कोई इनपुट हमने दिया तो वो इनपुट एज इट इज बना रह रहा है, ठीक है ना, मीन्स इट इज होल्डिंग डेटा। You may say that that particular circuit is holding data. Since it is holding data, ठीक है ना, for a certain duration, since it is holding data for certain duration, so we may call it as storage device. So we may call it as a storage device. Okay, so we may tell that bistable multivibrators are can also work as a memory element. Okay, bistable multivibrator can also work as memory element. Okay, so सपोज कैसे हम लोग बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए दिस इज W, दिस इज X, वी आर यूजिंग टू इन्वर्टर्स राइट नाउ, दिस इज Y एंड दिस इज Z। ओके, सो अगर W इज इक्वल्स टू, आपने अज्यूम कर लिया कि W इज इक्वल्स टू आपने दिया हुआ है 1, इफ यू हैव गिवन W इज इक्वल्स टू 1, सो X इज इक्वल्स टू बताइए क्या होगा, X विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो X इक्वल्स टू 0 होने पर Y इज इक्वल्स टू बताइए क्या होगा, Y is equals to again will become 0 and Z will be equals to 1. Okay, so you may tell that we have given input here W, okay, and which is W is equals to 1 and we are getting output Z is equals to 1. So here W is equals to 1 is being preserved here as Z is equals to 1. Okay, तो एक बार फिर मैं इसे लिख रहा हूं, यहां पर W इक्वल्स टू हमने 1 दिया था, ठीक है ना, तो यहां क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना, और फिर यहां पर क्या आ गया, यहां पर भी 0 आ गया और यहां पर बताइए क्या आ गया, यहां पर 1 आ गया। ठीक है, ये देखिए अब इस चीज को अगर आप इस चीज को जैसे यहां पर x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना, फिर यहां पर 0 है, 1 है, तो एक तरीके से आप देख रहे हो ये पॉजिटिव फीडबैक बेस्ड सिस्टम है। सो व्हाट इज लैचेस? लैचेस आर पॉजिटिव फीडबैक बेस्ड सिस्टम, positive feedback based system. So latches are positive feedback based system, okay, in which inverters are connected with the positive feedback. So here this particular inverter is connected, output of this particular inverter is connected to the input of this particular inverter and output of this particular inverter is connected as input of this particular inverter. So we may say if we are taking it here as an input and we are taking this particular output as this particular Z, so we are getting here input 1 is being preserved as these terminals and input 0 is being preserved at these particular terminals. Now suppose if you want to change the input, so now I am changing the input. If you want to change the input, now I am changing the input, okay. If I am going to change the input, now I am changing the input, okay. Now here W is equals to 0, okay. So if W is equals to 0, so Y is, X will become 1, okay. Now this 1 will be preserved here and here again we will get 0. So if we are giving here input 0, so we are again getting output also 0. So what are latches? Latches are simply cross coupled
positive feedback circuits in which inverters are connected in positive feedback. So you may say, if we are going to draw a graph between VZ and VW, this is VZ is output and VW is input. VZ is output and VW is input. If we are going to make a graph between VZ and VW, then what we will get? We will get here this kind of the transfer characteristics, and this kind of the transfer characteristics is transfer characteristics of means latch, where if W is low, then output is also low, sir. W is low, output is also low, and if W is high, then output is also high. Just a second. Okay, so here we can see that. So here we can see that this is transfer curve of latch. So how does it work? You have seen it. Now with the help of latches, we can make flip-flops. So again, in flip-flops, we are seeing here, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक ही इनपुट दे रहे हैं, ये W पे हमें इनपुट चेंज करना पड़ेगा. We have to change here at the input at W. So this is also kind of latch. The particular previous latch was designed by the help of inverters, and this is SR latch. This is particular SR latch, and SR latch which is being designed, which have been designed, SR latch which has been designed by the help of what? By the help of NOR gates. So what are NOR gates for? So we will make a truth table of NOR gate. Suppose we are having A and B, and here is output Y. Okay, if we are giving here 0 0, so definitely we will get here output as 1. If we are giving here 0 1, so we will get output here 0. If we are giving here 1 0, then again we will get output 0, and here if we are giving here 1 1, then again we will get output 0. So we may say that if any of input is low, then output will be, sorry, if any of input is high, then output will be definitely low. So this is what for NOR latch is. Okay, इसलिए है NOR latch. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, S. अब यहाँ पर हम ये समझ गए कि अच्छा कोई भी अगर एक इनपुट 1 हो गया, if any of input is 1, then output will be what? Output will be low. ठीक, so if S is equals to, अगर आपने यहाँ पर 1 कर दिया, if you will do S is equals to 1, so output here definitely Q bar will be definitely what? 0. Okay, so here Q bar will be, if भाई अब एक एक करके हम लोग सेट करते हैं, ठीक है ना. अब हम लोगों ने क्या किया, S is equals to हम लोगों ने 1 किया और R is equals to 0 रखा है. S is equals to 1 किया, R is equals to 0 रखा, तो Q bar की वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी, Q bar की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक, क्योंकि आपने S की वैल्यू को क्या सेट किया हुआ है, 1 सेट किया हुआ है. ठीक है, Q bar की वैल्यू 0 हो गई. ठीक है ना, और R की वैल्यू को आपने ऑलरेडी क्या सेट कर रखा था, R की वैल्यू को आपने जो कुछ भी सेट कर रखा था. ठीक, मींस R की वैल्यू को आपने यहाँ पर क्या सेट कर रखा है, अगर S की वैल्यू को 0 सेट किया हुआ है तो R की वैल्यू को भी आपने 0 सेट किया हुआ है. ठीक है, ये 0 0 अगर हो गया तो 0 0 होने पर यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ओके, सो हियर आउटपुट विल बी 1. ठीक, तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने S की वैल्यू को यहाँ पर क्या सेट किया, 0 सेट किया, और आप नॉर गेट के लॉजिक से हमने ये कंक्लूजन निकाला, यहाँ पर नॉर गेट सेल के लॉजिक से क्या कंक्लूजन निकाला, इफ एनी इनपुट इज हाई, अगर कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट विल बी हाई.
आउटपुट हाई। तो यहां पर हम लोग ने s इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 0 के लिए पहले एनालिसिस करना शुरू किया, तो s इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग ने एनालिसिस किया, तो कहा s इक्वल्स टू 1 है भैया यहाँ पर, ठीक है ना, और y इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर 1 होने के नाते r इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर 1 होने के नाते यहाँ पर आउटपुट डेफिनेटली 0 मिलेगा। अब 0 और यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको 0 रखा है, तो 0 0 के केस में जब दोनों के दोनों 0 हो जाते हैं तो आउटपुट यहाँ पर क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। सो बोथ आर 0, सो डेफिनेटली आउटपुट विल बी 1। सो 1 1 1 1 के केस में यहाँ पर 0 आना है, ठीक है ना। सो ये 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ इनपुट इस तरीके से होगा, s की वैल्यू 1 हुई, r की वैल्यू 0 हुई, तो यहाँ पर qn+1 मींस नेक्स्ट स्टेट जो होगी दैट विल हैव वैल्यू 1। ओके, अगला नेक्स्ट पे हम लोग यहाँ पर r पे जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर क्या सेट कर देते हैं, r पे जो वैल्यू है उसे हम लोग 1 कर देते हैं। और तब देखते हैं r पे हम लोग ने वैल्यू को 1 किया, r पे वैल्यू को 1 किया, तो डेफिनेटली अगर कोई भी इनपुट अगर 1 हो गया नॉर गेट में, तो आउटपुट क्या हो जाता है, आउटपुट आपका क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है ना। सॉरी, दिस इज आउटपुट इज लो, ठीक है, तो आउटपुट यहाँ पर लो हो जाता है, तो यहाँ पर आउटपुट बताइए क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0, ये 0 हो गया, और r की s की वैल्यू को ऑलरेडी आपने 0 सेट कर रखा है, 0 0 के लिए आउटपुट फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो q बार यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी और q की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए 1 0 के लिए यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज अगर हम लोग ने यहाँ पर Q और S दोनों की वैल्यू को 1 1 सेट कर रखा है, अगर आपने यहाँ पर दोनों की ही वैल्यू को 1 सेट कर रखा है, तो आपको ये पता है नॉर गेट के इनपुट पर अगर कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर भी 0 आता है, तो ये नॉट डिफाइंड काइंड ऑफ कंडीशन आ जा रही है। क्यों? क्योंकि Q बार और Q बार अगर यहाँ पर दोनों पे ही 0 आ जा रहा है, इनपुट हम 1 दे रहे हैं, तो कोई भी जो भी हम चाहते थे वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। सो दिस स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो 1 1 के लिए हम लोग नॉट यूज्ड और नॉट डिफाइंड इसीलिए लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें Q और Q बार की वैल्यू भी चाहिए, मींस हमें ऐसा चाहिए कि आउटपुट प्रिजर्व हो, तो हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उस पर आउटपुट तो डेफिनेटली प्रिजर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों ही केस में आउटपुट 0 हो जा रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, Q बार। और नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ पर 0 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, ठीक है ना। तो अब 0 0 होने के नाते ये S वाला जो आउटपुट होगा, अगर Q की वैल्यू को मैंने मान लिया 1 है, अगर इसकी वैल्यू को मैंने 1 मान लिया, तो ये 1 होते ही यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 0 होते ही 1 हो जाएगा, मतलब जो प्रीवियस स्टेट थी वो एज इट इज रह जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू को मैंने 0 मान लिया, तो ये देखिए 0 अगर यहाँ पर रखा, तो 0 0 के नाते आउटपुट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पर जाएगा फीडबैक के नाते, तो 1 0 के नाते आउटपुट फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर मैं 0 0 रख रहा हूं और कोई भी वैल्यू यहाँ पर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मींस Q के चाहे 0 वैल्यू के लिए चाहे Q के 1 वैल्यू के लिए जो आउटपुट है वो एज इट इज बना रह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे इसको अगर मैं CMOS से इंप्लीमेंट करना चाहूं तो कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, हाउ आई कैन इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर सर्किट यूजिंग CMOS, ठीक है। तो CMOS से इंप्लीमेंट करने के लिए जरा देखते हैं, ठीक। CMOS से इंप्लीमेंट करने के लिए आप बताइए, आपको टू इनपुट नॉर गेट बनाने हैं, और कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं, ठीक। तो नॉर गेट ये जो NMOS वाला होता है उसमें पैरेलल में जाता है, ठीक है। तो ये 2 इनपुट नॉर गेट हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, वी आर मेकिंग हियर 2 इनपुट नॉर गेट, ओके, दिस इज ग्राउंड, ओके, एंड दिस, and similarly this one, this one is VDD, okay, this one is PMOS, and this one is again PMOS, okay। सो कोई इनपुट हमें देना है, तो हमने यहाँ पर इनपुट एक दिया, हमने कहा ऐसा है, इसको इनपुट हम लोग दे देते हैं, कोई भी एक गेट बना लीजिए, पहले R वाला बना लीजिए, S वाला बना लीजिए, तो यहाँ पर आप कोई भी एक जो चाहिए आप बनाइए। तो आप जो चूंकि नीचे वाले स्टेट्स में, नीचे वाले जो सर्किट्स है उसमें आप S और R कहीं पर भी कोई भी बना सकते हैं। नीचे वाले में एक सेकंड देख लेते हैं कि ये कैसे बनाया हुआ है, एक सेकंड।
एस इधर बना हुआ है, तो हम लोग एस इधर बनाते हैं, ठीक है ना, आर उधर बनाएंगे। पहला हम लोग यहाँ पर एस बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये इस पे हमने कहा कि यहाँ एक्चुअल में यहाँ पर इनपुट एस जा रहा है और ये भी इनपुट आपका क्या जा रहा है, एस जा रहा है, ठीक है। और ये आपका जो इनपुट आ रहा है, अच्छा यहाँ पर इसका जो आउटपुट आता है, बताइए आउटपुट क्या आता है। आउटपुट जो आपका आता है एस और आर, देखिए ये एस और आर, यहाँ पर आउटपुट आता है क्यू बार। तो आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ पर क्यू बार आउटपुट ले रहे हैं, कौन सा आउटपुट ले रहे हैं, क्यू बार, ओके। और इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को हम लोगों ने कहा ऐसा है कि आपका जो इनपुट रहेगा, देखिए एक तो एस हो गया, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, एस के साथ क्यू, एस के साथ बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस के साथ यहाँ पर हो जाएगा क्यू, तो एस और क्यू, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे क्यू से हम लोग लेंगे इसे, ठीक। अब दूसरा इसी तरीके से बना दे रहे हैं, अलग कलर से मैं बना दे रहा हूँ इसे, ठीक ना, दिस विल बी यूज्ड फॉर, ठीक, ये फिर से हम लोग नॉर गेट बना रहे हैं, ठीक। नॉर गेट में नीचे क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक, और ये हो गया और ये हो गया, ठीक। यहाँ पर आपने एक इनपुट दे दिया आर, ठीक, और फिर दूसरा यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं, दिस पर्टिकुलर आर, ओके। फिर VDD, ओके, दिस, ओके। तो आपका देखिए इस वाले में दूसरा इनपुट क्या है, क्यू बार, तो आप ये क्यू बार वाला आपने यहाँ पर इस तरीके से ये जो है ले जा करके यहाँ पर कनेक्ट किया और यहाँ पर कनेक्ट किया, तो इस तरीके से एस आर लैच, और ये जो इसका जो आउटपुट आएगा, दिस पर्टिकुलर आउटपुट, इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक। तो ये क्यू वाला वो जो आउटपुट है आपने ले जा करके इस पे कनेक्ट किया, एक इनपुट देखिए। सो दिस इज CMOS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SR लैच। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नॉर गेट है और टू इनपुट नॉर गेट, टू इनपुट नॉर गेट इस तरीके से क्रॉस कनेक्टेड है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया, ओके। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक। अब आता है फ्लिप फ्लॉप। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। लैचेस में जो आउटपुट होता है वो इनपुट के जरिए कंट्रोल किया जाता है, और फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पर क्लॉक पल्सेस के जरिए कैलकुलेट किया जाता है, ओके। सो दिस in aspect of E you may read it as a phi, okay. This one is phi. So जब ये phi क्लॉक हाई आएगी, R पे चाहे जो भी इनपुट रहे या S पे चाहे जो भी इनपुट रहे, ये R यहां पर तभी प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। R will go here only when this clock input is high, अदरवाइज ये क्लॉक इनपुट अगर हाई नहीं होगी तो ये आर जो है वो आगे प्रोसेस में नहीं जाएगा, ठीक। अब ये आप लो ट्रांजिस्टर लॉजिक पे भी बना सकते हो, हाई ट्रांजिस्टर लॉजिक पर भी बना सकते हो, ठीक है। आप लो ट्रांजिस्टर लॉजिक पे भी बना सकते हो और हाई ट्रांजिस्टर लॉजिक पर भी बना सकते हो, ठीक। अब एस ये यहां पर तभी जाएगा, ये एस तो यहां पर तभी जाएगा जब यहां पर इनपुट क्या होगा, जब आपका इनपुट यहां पर हाई आएगा, ये फाई, अगर फाई हाई नहीं आएगा तो ये एंड गेट के आगे प्रोसेसिंग नहीं होगी। सो दिस इज कॉल्ड क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इन क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप व्हाट वी डू, वी कैस्केड टू एंड गेट, okay, and these AND gates are clocked. Does the are connected to the clocked input. This is clocked input. Phi is actually clocked input, okay, with R and S, okay. So अगर आप यहां पर चाहेंगे phi S and R, phi S and R, okay. So previously लैच में अगर आप देखेंगे क्यू क्या हो रहा है,
तो प्रीवियसली जो लैच का आप ट्रुथ टेबल देखे थे, लैच के ट्रुथ टेबल में जब s इक्वल्स टू 1 हो रहा था तो q इज इक्वल्स टू 1 हो रहा था, जब s इक्वल्स टू 0 हो रहा था तो q इज इक्वल्स टू 0 हो रहा था, r इक्वल्स टू 1 होने पर 1 1 पे ये नॉट इक्वल्स टू हो रहा था। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर फाई 0 है, फाई 0 है, ठीक है, और एस और आर की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक, एस की वैल्यू को आप 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, ठीक है, वो जो भी प्रीवियस स्टेट रहेगी वो एज इट इज बनी रहेगी, ठीक, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक क्लॉकिंग नहीं होगी तब तक इनपुट नहीं चेंज होगा। जब यहां पर क्लॉकिंग हो जाएगी 1 0 1 तो आउटपुट यहां पर 1 आएगा, ठीक है, जब यहां 1 1 सॉरी 1 1 0 के लिए आउटपुट यहां पर 1 आएगा, 1 0 1 के लिए आउटपुट यहां पर क्या आएगा, यहां पर 0 आएगा, ठीक है ना, 1 0 0 के लिए बताइए आउटपुट यहां पर क्या आएगा, 1 0 0 के लिए आउटपुट यहां पर क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट यहां पर आ जाएगा, फिर जो भी प्रीवियस आउटपुट रहा होगा Q आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से, और यहां पर 1 1 1 के लिए फिर से यहां पर नॉट यूज रहेगा। अदरवाइज अगर यहां पर फाई की वैल्यू 0 है तो जो भी प्रीवियस स्टेट रहेगी वो एज इट इज प्रिजर्व रहेगी, ठीक, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी काम नहीं होगा, ठीक। तो अब अगर हम लोग इसका बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखिए जो भी हम लोगों ने यहां पर बनाया था, ठीक, इसमें देखिए एक चेंज होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, वो चेंज यही होने जा रहा है कि साहब ये एस वाला तभी एक्टिवेट होगा, ठीक है, ये वाला पाथ तभी एक्टिवेट होगा जब इसके साथ फाई आएगा। अगर इसके साथ फाई नहीं आया तो ये पुल डाउन नहीं करेगा, ओके, तो इसके साथ अगर फाई नहीं आया तो ये पुल डाउन नहीं करेगा, ठीक, ये क्या किया रहेगा, ये पुल डाउन नहीं करेगा अगर इसके साथ यहां पर फाई नहीं आएगा, मतलब फाई और एस दोनों एक साथ एक्टिवेट होंगे तभी ये सर्किटरी काम करेगा, अदरवाइज ये सर्किटरी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये फाई हो गया, ठीक, ये फाई हो गया और एस, फाई और एस जब दोनों एक साथ एक्टिवेट होंगे, ठीक, तभी ये सर्किटरी काम करेगा, अदरवाइज ये सर्किटरी काम नहीं करेगा, ठीक। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोगों ने एक ट्रांजिस्टर और ऐड कर दिया, और वो ट्रांजिस्टर कौन सा था, हम लोगों ने एस के सीरीज में ट्रांजिस्टर फाई के लिए टर्म्स में यूज किया, और वैसे ही हम लोगों ने यहां पर आर के भी सीरीज में फाई के लिए ट्रांजिस्टर यूज किया। ये 8 ट्रांजिस्टर लॉजिक का सर्किट है, दिस इज 8 ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट, 8 ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट, ठीक है, दिस इज 8 ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट, ओके, ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का 8 ट्रांजिस्टर लॉजिक का सर्किट है, दिस इज 8 ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया यहां पर, हम लोगों ने एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो फाई इनपुट है, ठीक है, फाई इनपुट है उसको हम लोगों ने कहा है कि फाई इनपुट तभी एक्टिवेट होगा, ओके, फाई इनपुट आपका तभी एक्टिवेट होगा जब फाई इनपुट आपका तभी एक्टिवेट होगा, ठीक, जब वहां पर क्या होगा, जब वहां पर जब क्लॉक पल्स आएगी, अगर क्लॉक पल्स नहीं आएगी, ठीक है, तो आउटपुट एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक। सो बेसिकली यहां पर जो सारी चीजें हैं वो किस पर रिलेटेड है, दैट इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड ऑन क्लॉक पल्स, ठीक है। तो क्लॉक पल्स आएगा तो क्लॉक पल्स को हमें ब्रेक करना है या फिर उसको पास करना है, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यहां पर एक लॉजिक इनपुट लो होगा कि हाई होगा, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर एक फाई ट्रांजिस्टर ऐड कर दिया, ठीक। अब इसमें हम लोग एक ये कर लेते हैं, अगर फाई इज इक्वल्स टू 0 है, अगर कहीं पर भी फाई इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक, तो फाई इज इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन में देखिए क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन में ये Q6 ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, मींस ये ऑफ होगा, मींस ये ओपन सर्किट क्रिएट करेगा, वैसे यहां पर भी ये क्या क्रिएट करेगा, ये ओपन सर्किट क्रिएट करेगा, ठीक।
तो अगर ये ओपन सर्किट क्रिएट करेगा तो जो भी प्रीवियस स्टेट रही होगी Q या Q बार की, वो एज इट इज प्रिजर्व रहे, ठीक, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि S भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा, R भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि ये पाथ में मान लीजिएगा R अगर 1 भी हो गया, ये ऑफ भी हो गया, लेकिन ये यहां पर ओपन सर्किट है। S अगर 1 भी हो गया, S अगर 1 भी हो गया लेकिन ये यहां पे क्या है, दिस इज ओपन सर्किट, ठीक। सो सबसे पहली चीज क्या है कि फाई अगर 0 होगा, फाई इज इक्वल टू 0, तो ये क्या कॉज कर रहा है, फाई इज इक्वल टू 0 में ये कॉज कर रहा है कि ये जो है Q8 एंड Q6 ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे, ऑफ ट्रांजिस्टर की तरह से बिहेव करेंगे, विल बिहेव एज ऑफ ट्रांजिस्टर। और जब ये दोनों के दोनों ऑफ ट्रांजिस्टर की तरह से बिहेव करेंगे, तो जो भी आपका प्रीवियस स्टेट रही होगी वो पूरी की पूरी एज इट इज होल्ड होगी, ठीक। हम लोग क्या कर देते हैं, फाइव इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, फाइव इक्वल्स टू 1 कर दिया, एस इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, और आर इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया 0। इस कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं, फाइव इक्वल्स टू हमने 1 कर दिया है, ओके, फाइव इक्वल्स टू 1 कर दिया है। जब फाइव इक्वल्स टू 1 होगा तभी ये यस और आर वाला कम्युनिकेट हो पाएगा, अदरवाइज ये कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फाइव इक्वल्स टू हमने यहाँ पर 1 कर दिया है, एस इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, एस इक्वल्स टू भी हमने 1 कर दिया है, और आर इक्वल्स टू फाइव इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, फाइव इक्वल्स टू 1 है, और आर इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया 0। ओके, तो अब मैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट को दिखाता हूं। यहां पर ये कैसे बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, तो यहां पर क्लोज्ड पाथ की तरह से बिहेव करेगा, दिस विल आल्सो बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, तो यहां पर ये क्लोज्ड पाथ की तरह से बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, तो ये क्लोज्ड, लेकिन ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, तो यहां पर ये क्लोज्ड पाथ नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर आप देख रहे हैं पुल डाउन नेटवर्क क्लियर हो जाएगा। जब यहां पर ये पुल डाउन नेटवर्क क्लियर हो जाएगा, तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पर ये जो भी आउटपुट होगा वो पुल डाउन हो जाएगा। तो कौन सा आउटपुट है, यहां पर Q बार आउटपुट, तो ये दिस विल रिजल्ट, ठीक है ना, ये आपको क्या रिजल्ट करेगा, दिस विल रिजल्ट क्या Q6, ठीक है ना, कॉमा Q5 कॉमा Q whatever this transistor number is, this transistor number is Q8, Q8, this will behave as a short circuit, on transistor की तरह से behave करेंगे, and these will behave as a short circuit, okay, so this will behave as a short circuit, ठीक है ना। तो ये जो Q5 और Q6 है, this will activate pull down network, पुल डाउन नेटवर्क को एक्टिवेट करेगा, एंड पुल डाउन नेटवर्क को एक्टिवेट करेगा किस वाले में, जो लेफ्ट वाले सर्किट है उसमें पुल डाउन नेटवर्क एक्टिवेट हो गया, तो क्यू बार की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, डेफिनेटली क्यू बार की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक। क्यू बार की वैल्यू देखिए यहां पर 0 हो गई, इफ क्यू बार इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, सो दिस पर्टिकुलर क्यू बार, okay, this particular q bar is connected to, is being given as an input to this, and this क्यू बार 0 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी ऑफ की तरह से बिहेव करेगा। जब ये दोनों ऑफ हो गए और क्यू बार इक्वल्स टू 0 अगर यहां पर जा रहा है, तो 0 जब इनपुट पे जाता है पीमॉस के लिए, तो Q4 बताइए कैसे बिहेव करेगा, Q4 ऑन की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, और Q3 कैसे बिहेव करेगा, Q3 आपका ऑफ की तरह से बिहेव करेगा, ठीक। और ये आपका ऑलरेडी ये सारे के सारे ट्रांस, तो ये जब ये ऑफ की तरह से बिहेव करेगा, ये ऑन की तरह से बिहेव करेगा, तो ये जो है ये पुल अप नेटवर्क को एक्टिवेट करेगा, पुल अप नेटवर्क को एक्टिवेट करेगा। कहां पर पुल अप नेटवर्क को एक्टिवेट करेगा, आपके Q4 के नाते यहां पर पुल अप नेटवर्क को एक्टिवेट करेगा, तो यहां पर Q बार की वैल्यू यहां पर क्या सेट हो जाएगी, Q की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी, तो दिस विल बिकम 1, ओके। सो इस तरीके से ट्रांजिस्टर लॉजिक में एक स्टेट हम लोगों ने ये देखी। अगर एस इक्वल्स को हम लोग यहाँ पर 0 सेट कर दे रहे हैं और आर इक्वल्स हम लोग 1 सेट कर दे रहे हैं, एस इक्वल्स हमने यहाँ पर क्या सेट कर दिया 0, और आर इक्वल्स यहाँ पर क्या सेट कर दिया 1 सेट कर दिया, ठीक है ना, आप इसको 1 सेट कर दिए, तो यहाँ पर ये बताइए क्या हो जाएगा, दिस विल अगेन बिकम शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। सो ये जब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए, ठीक। तो यहाँ पर बताइए पूरा का पूरा पाथ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और आपका यहाँ पर एस इक्वल्स टू 0 है, एस इक्वल्स टू 0 होने के नाते ये बताइए दिस विल बिहेव एज ओपन सर्किट, ये कैसे बिहेव करेगा ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, तो ये पाथ क्या एक्टिवेट हो पाएगा, नहीं, ये वाला आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर, कौन कौन से ट्रांजिस्टर, Q8 एंड Q7 will behave as a short circuit, means this will behave as a on, so this will cause pull down network to be activated, pull down network activate होने के नाते Q की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, this Q value will become 0, okay, once this Q value becomes 0, so definitely this particular transistor
यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा, ये पाथ ऑलरेडी ब्रेक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर 0 आएगा तो Q1 भी ऑफ की तरह से बिहेव करेगा, ये भी ऑलरेडी ब्रेक ही रहेगा, मतलब यहाँ पर पुल डाउन नहीं हो पाएगा। और चूंकि यहाँ पर 0 है इनपुट PMOS का, तो Q2 आपका ऑन ट्रांजिस्टर की तरफ से बिहेव करेगा, सो दिस विल कॉज अ शॉर्ट सर्किट, एंड सिंस दिस विल कॉज अ शॉर्ट सर्किट, सो यहाँ पर ये क्या क्रिएट करेगा, दिस विल कॉज दिस टू बिकम ओके, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, सो वंस R is equals to 1, Q bar will become 1. Okay, next condition is both are 0, S is equals to 0 and R is equals to 0, both are 0. Suppose here both are 0, this is also 0. Okay, second, this is also 0 and this is also 0, both are 0, both are 0. Okay, once both are 0, in this particular case both of these paths will be break. तो वही बात है, चाहे phi इक्वल टू 0 हो, चाहे S या R दोनों को वैल्यू को 0 कर दिए, तो वही बात रहेगी, मतलब प्रीवियस स्टेट क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। तो जो भी प्रीवियस स्टेट है वो एज इट इज बनी रहेगी। ठीक है, अच्छा सर, दोनों के दोनों अगर 1 हो गए, phi इक्वल्स टू 1 के साथ साथ दोनों के दोनों अगर 1 हो गए, बोथ आर 1, तो आप देख रहे हैं दोनों के दोनों जगह पुल डाउन नेटवर्क एक्टिवेट हो जाएगा। जब दोनों के दोनों जगह पुल डाउन नेटवर्क एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ पर Q और Q बार दोनों की वैल्यू को 0 सेट हो जाएगा, मतलब ये फिर से नॉट डिफाइंड स्टेट पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से सारी की सारी स्टेट्स को, जब ये अगर सर्किट आता है, कैसे ये सर्किट बनाया हमने, वो पहले आप क्या करेंगे, आप लैचेज वाले एसआर सर्किट को देखा, उससे हम लोगों ने नॉर गेट को इंप्लीमेंट किया, और फिर हमने कहा कि अच्छा क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमें क्लॉक को भी उसके साथ कपल करना होता है, तो क्लॉक कपलिंग के लिए हमें एंड गेट उसके आगे कैस्केड में लगाना होता है। ठीक है ना, तो उसको कैस्केड में एंड गेट को लगाने का तरीका ये था कि हम यहाँ पर एस और आर के साथ साथ एक सीरीज में, चूंकि एंड गेट विल कॉज सीरीज, तो हम लोग सीरीज में एक मॉस ट्रांजिस्टर लॉजिक को लगाए और वहां पर NMOS में लगा करके हम लोगों ने उसमें 5 इनपुट दे दिया, तो इस तरीके से हमें 8 ट्रांजिस्टर लॉजिक मिला। ओके, कोई डाउट हो 8 ट्रांजिस्टर लॉजिक में तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं है? तो अब 6 ट्रांजिस्टर लॉजिक हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो 6 ट्रांजिस्टर लॉजिक में को बनाने के लिए दिस इज 6 ट्रांजिस्टर लॉजिक ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है आपको 8 ट्रांजिस्टर लॉजिक या फिर 6 ट्रांजिस्टर लॉजिक पूछेगा। ठीक है, 8 ट्रांजिस्टर लॉजिक या 6 ट्रांजिस्टर लॉजिक पूछेगा। ठीक है, तो 8 ट्रांजिस्टर लॉजिक या 6 ट्रांजिस्टर लॉजिक में क्या होता है कि 6 ट्रांजिस्टर लॉजिक में हम लोग ऑल पास ट्रांजिस्टर का भी यूज करते हैं। ठीक, बाय यूजिंग ऑल पास ट्रांजिस्टर हम लोग बनाते हैं कि ऑल पास ट्रांजिस्टर का भी हम लोग कपलिंग करके हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए ऑल पास ट्रांजिस्टर होता क्या है? ऑल पास ट्रांजिस्टर एक तरीके से कोई भी अगर NMOS को अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर दे दे रहे हैं, ठीक है, ये है, अगर यहाँ पर हमने 5 दे दिया है 5 इनपुट अगर हमने यहाँ पर दिया, तो आउटपुट यहाँ पर हमें डेफिनेटली मिलेगा। कब मिलेगा? इफ phi इज इक्वल्स टू 1, तो उस केस में आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको? इनपुट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। इफ phi इज इक्वल्स टू 0, तो ये पास नहीं करेगा, डेफिनेटली आउटपुट विल बी इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें जो लग रहा था ना, ये चीजें बहुत ही आसानी से ऑल पास ट्रांजिस्टर से भी एक्टिवेट की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग पैरेलल में एक जो सर्किट लगा रहे थे, एक आप देख रहे होगे ना, एस और आर एक तरीके से पैरेलल में लगा रहे थे बार बार, तो इसे हम लोगों ने क्या किया, इसे हम लोगों ने चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पर लगा रहे थे बार बार, तो हम लोगों ने इसे चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया साहब? हम लोगों ने कहा कि ऐसा है कि ये एस और आर पैरेलल में लगाने के बजाय अब हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, देखिए एस के साथ भी हम लोगों ने यहाँ पर एस और आर यहाँ पर पैरेलल में लगा रहे थे बार बार। ठीक है, तो इसे हम लोग ने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया साहब? हम लोग ने ये चेंज किया, कहा कि ओके ठीक है, एस अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें कि एस ऑल पास ट्रांजिस्टर अगर हम लोग यहीं पर लगा दें, ठीक है, इसी पर्टिकुलर सर्किट में अगर हम लोग यहाँ पर ऑल पास ट्रांजिस्टर लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग एस लगा देते, सपोज करिए जैसा कि अगर हम लोग प्रीवियस स्टेट को यूज कर रहे थे, ठीक है, अगर आप सीधे उस सर्किट को सीधा करके लगा देते, एस लगा कर देते, एस पाई और क्यू बार, तो लेकिन एस इक्वल टू 1 होने पर यहाँ पर हमें क्यू बार इक्वल टू 1 नहीं चाहिए। एस इक्वल टू 1 होने पर हमें क्या चाहिए? क्यू बार इक्वल टू 0 चाहिए, क्यू इज इक्वल टू 1 चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे अगर ऐसा इतना भी सिंपल, आप इसे अगर सीधा करके
मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको यहाँ पर सीधे के सीधे ऑल पास ट्रांजिस्टर लॉजिक लगा लेते और यहाँ पर एस लिख देते, अगर आप सीधे सीधे यहीं पर एस लिख देते तो क्या होता, अगर आप सीधे सीधे यहीं पर एस लिख देते तो ये क्यू बार वाला कंडीशन के नाते ये सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हमें चेंज करना पड़ा। क्या चेंज करना पड़ा? हम लोगों ने इसमें एक और क्या काम किया, हम लोगों ने यहाँ पर एस की जगह आर कर दिया और आर की जगह एस कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर, कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर एस कर देते तो फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती, ठीक। तो पिछले वाले सर्किट से हम लोगों ने एक चेंज यही किया है कि हम लोगों ने क्या किया है कि एस की जगह आर और आर की जगह एस कर दिया है, ठीक। मतलब बस एक फाई फाई यहाँ पर लग गया है जो एंड गेट की तरह से लग रहा था, बस यहाँ पर एस आ रहा था, एस की जगह हमने यहाँ पर आर कर दिया है और आर की जगह हमने यहाँ पर एस कर दिया है। क्यों ऐसा किया है आप इसे देखिए, क्यों? क्योंकि अगर फाई इक्वल्स टू 1 होगा, आर इक्वल्स टू 1 अगर आप रखोगे तो सीधे क्यू बार 1 मिल जाएगा। सॉरी, अगर ऐसे यहां पर रहता पुराने वाले से अगर आप करते एस इक्वल्स टू 1 रखते तो क्यू बार की वैल्यू 1 मिल जाती, जो कि सही नहीं होती, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप चाहिए तो यहाँ क्यू बार के बजाय आप क्यू रखिए, समझ गए? आप यहाँ पर एस रखिए और यहाँ क्यू रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप यहाँ पे आर रखिए और यहाँ क्यू बार रखिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए जब इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया तो ये दिक्कत आई, इसलिए यहाँ पर आर यूज किया जा रहा है और क्यू बार यूज किया जा रहा है, ठीक। तो जब r इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए अगर आप फाइव इज इक्वल्स टू 1 तो वही सेट करना ही है, फाइव इज इक्वल्स टू 0 के लिए तो कुछ पास नहीं होगा, फाइव इज इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, कुछ पास होगा। यहाँ पर फाइव इज इक्वल्स टू 0 कर दिए, फाइव इज इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना इनपुट जाएगा ना कोई आउटपुट जाएगा, सारी की सारी प्रीवियस स्टेट एज इट इज प्रिजर्व रहेगी, ठीक है। फाइव इज इक्वल्स टू अगर आप 1 कर देते हैं, फाइव इज इक्वल्स टू 1 करने पर आप बताइए क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू अगर आप 1 कर दिए और r इज इक्वल्स टू अगर आपने 0 कर दिया, s इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 0, ठीक। s इक्वल्स टू 1 किया आपने, r इक्वल्स टू 0, जब s इक्वल्स टू 1 हुआ, फाइव इक्वल्स टू 1 हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पास होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, Q6 विल बिहेव एज ऑन, Q6 ऑन की तरह से बिहेव करेगा। और बताइए यहाँ पर Q5 कैसे बिहेव करेगा, Q5 विल बिहेव एज ऑफ, ठीक। अच्छा, Q6 ऑन की तरह से बिहेव करेगा तो यहाँ पर ये हाई, यहाँ पर ये Q की वैल्यू को क्या कर देगा, ये Q की वैल्यू को क्या कर देगा, Q की वैल्यू को यहाँ पर ये 1 सेट कर देगा, ठीक। जैसे यहाँ पर ये Q की वैल्यू को 1 सेट करेगा, यहाँ पर ये देखिए Q की वैल्यू 1 जाएगी, जब ये 1 जाएगी तो इसका इन्वर्टर यहाँ पर Q बार की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0, क्योंकि अभी इसका यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, इसको कोई अता पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। Q इक्वल्स टू 1 और इसके नाते ये इन्वर्टर लॉजिक की तरह से बिहेव करेगा, Q2 और Q1 के थ्रू इन्वर्टर होके यहाँ पर आपको Q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर के लिए भी ये काम कर रहा है जो हम लोगों ने देखा, ठीक। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर s की वैल्यू को 0 कर दिया और r की वैल्यू को अगर 1 कर दिया, s की वैल्यू को हमने 0 कर दिया और r की वैल्यू को 1 कर दिया, s की वैल्यू को हमने 0 किया और r की वैल्यू को हमने किया 1, ठीक है ना। s की वैल्यू को 0 किया और r की वैल्यू को किया 1, s की वैल्यू को जैसे ही 0 किया, यहाँ पर ये बताइए कैसे बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट, ठीक है ना। ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, ये कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। सिंस दिस विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट तो Q बार की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1, मींस इन दिस पर्टिकुलर केस Q5 will behave as on transistor and Q6 will behave as off transistor and this will behave as short circuit, ओके। तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, जब ये 1 आ जाएगा तो इसका इन्वर्टर के जरिए यहाँ पर Q की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, दिस विल अगेन बिकम 0, ठीक है, हो गया। अब अगर दोनों के दोनों 0 हो गए, दोनों के दोनों 0 हो गए साहब, ये भी 0 ये भी 0, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फाई की वैल्यू को आप कुछ भी ले जाओ, यहाँ पे तो 0 ही पास हो रहा है, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस स्टेट थी वो एज इट इज, अगर मान लीजिए कोई प्रीवियस स्टेट पहले से प्रिजर्व थी तो एज इट इज बनी रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अगर दोनों के दोनों 1 हो गए, बोथ आर 1, तो अगेन फिर वहां पर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और 1 1 होने के नाते इन्वर्टर होगा तो फिर वो 1 0 के बीच में कंफ्यूजन होगी और ये नॉट डिफाइंड तरीके से सर्किट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर लॉजिक भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे के सारे स्टेट्स फाइव इक्वल्स टू 0 के लिए और फाइव इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर s इक्वल्स टू 0 और 1, फिर 1 0, इस तरीके से ऐसा और r की वैल्यू को सेट करते हुए डिफरेंट स्टेट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए।